मैथ में सबसे पहला पोर्शन अलजेब्रा का पोर्शन पढ़ाएंगे, वो है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स की बात करते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स की बात किया जा रहा है। मैट्रिक्स की बात किया जा रहा है कि सबसे पहला क्वेरी होता है व्हाट इज मैट्रिक्स। इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज सिस्टम की बात करते हैं। व्हाट इज सिस्टम सिस्टम का मतलब है द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट टू गेट ए डिजायर्ड आउटपुट इज नोन एज द सिस्टम। सिस्टम मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट टू गेट ए डिजायर्ड आउटपुट इज नोन एज द सिस्टम। जैसे सिस्टम डिफाइन किया जाता है, देन इसी के बाद की बात करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस का मतलब है सीधा मैट्रिसेस का मतलब है द अरेंजमेंट ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर बॉक्स। द अरेंजमेंट ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर बॉक्स बाय रो एंड कॉलम is known as matrices. Matrices is represented by capital letter A या capital letter B या capital letter C या capital letter X or Y something. It is denoted by this. Matrices is represented by A equal to like something 1 2 3. Matrices is represented by 1 2 3 4 5 6. Matrices means the arrangement of real and complex number in a rectangular box by row and column is known as the matrices here. The horizontal line. What is row? पहला क्वेरी होगा what is row? Row means the horizontal line is called row. The horizontal line is called row. Row is represented by M and it is also represented by I. And second term is known as the column. The vertical line is called column. And column is represented by N or J. Matrices means A is denoted like 1 2 3 I है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 I है. The arrangement of real and complex number by row and column is known as the matrices. Matrices की जैसे बात matrices की करते हैं तो it general form is represented by A is known as A11, A12, A13, A1n. A21, A22, A2n. ऐसे AM1, AM2, AMn. And n cross en. M is the row and n is the column. M is the row and n is the column. Means m cross n is also known as order of a matrix. M cross n is also known as the order of a matrix. Then आता है what is the order of matrix की बात करते हैं तो like suppose करिए A is the matrix है, A equal to 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. ये 2 cross 2 is the order of a matrix and 2 cross 2 equal to 4. That means 4 element present in that matrix. 4 element present in that matrix of A, and it is represented by denoted by A, or it is represented by any capital letter X or Y or Z or A or B or something. First thing, what is matrices and what is the representation of a matrices, and then general form of matrices. A equal to something A11. 11 का मतलब है पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, डॉट पहला रो n कॉलम. सिमिलरली दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, डॉट दूसरा रो n कॉलम. ऐसे चलता जा रहा है. ये n क्रॉस n का मैट्रिसेस मिला. फॉर एग्जांपल Aij equal to
आई प्लस जे इज एनी मैट्रिक्स है और बनाना हो कि नया मैट्रिक्स बनाना हो समथिंग 2x2, 3x4, 1x2 मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात किया जाए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स मीन्स कि इफ ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स। 2x3 मीन्स 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। 2x3 मीन्स A इज द मैट्रिक्स, सपोज समथिंग A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये A23, ये 2x3 की मैट्रिक्स। कंडीशन इज गिवन I इज द रो, J इज द कॉलम, मीन्स Aij इक्वल टू I प्लस J। नाउ कैलकुलेट A11 means 1 plus 1 equal to 2, A12 1 plus 2 equal to 3, A13 1 plus 3 equal to 4, A21 2 plus 1 equal to 3, and A22 2 plus 2 equal to 4, and A23 2 plus 3 equal to 5. Now put the value of matrices. A equal to A11 means 2, 2, 3, 4 and 3, 4, 5. कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स से बन गया। मैट्रिक्स बनने की जो भी कंडीशन होगी वो सीधा है कॉन्सेप्ट कि 2x3 हो, 3x3 हो, 3x4 हो, 5x8 हो, जो भी होगा कंडीशन इज गिवन रहेगा। कंडीशन कुछ दिया रहेगा कि लाइक कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स whose Aij equal to I minus j divide by 2। ऐसे भी दिया जा सकता है कि Aij equal to I minus j by 2 and construct 3x4 matrix। 3x4 matrix means row is 3 and column is 4, row is 3, column is 4। 3x4 का मतलब 3x4 that means a matrix A11, A12, A13, A14, A14। पहले सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, फिर A21, A22, A23, A24 एंड A31, A32, A33 और A34। ये 3x4 का एक मैट्रिक्स बना लिए। जो कंडीशन इज गिवन है, कंडीशन इज गिवन कि Aij इक्वल टू दिया है I माइनस j अपॉन 2, इट इज गिवन। एंड नाउ पुट A11 मीन्स 1 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 0 बाई 2 इक्वल टू 0 होगा। फिर A12 मीन्स पहला रो दूसरा कॉलम मीन्स I इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2 मीन्स 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2 एंड A13 1 minus 3 upon 2 that is minus 2 by 2 equal to minus 1 and A14 means 1 minus 4 upon 2 that is minus 3 by 2। Similarly ऐसे A21 means 2 minus 1 upon 2 that is 1 by 2 and A22 means 2 minus 2 upon 2 that is 0 and A23 that is 2 minus 3 upon 2 that is minus 1 by 2 and A24 means 2 minus 4 upon 2 that is minus 1 and similarly A31 3 minus 1 by 2 equal to 1, A32 3 minus 2 upon 2 that is 1 by 2 and A33 that is 3 minus 3 upon 2 equal to 0 and A34 that is 3 minus 4 upon 2 that is minus 1 by 2. Now put the value in a matrix like A equal to A11 that is 0 minus 1 by 2 and minus 1 and A14 that is minus 3 by 2 A11 and similarly A21 means 1 by 2 0 and minus 1 by 2 or minus 1। Now A31 1 by 2 and 0 and minus 1 by 2। इस तरीके से मैट्रिक्स एक फॉर्मेशन हो गया।
इसी तरीके से पहले एक्सरसाइज के एनसीईआरटी में या आरडी शर्मा में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैट्रिसेस की बात होती है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, कंस्ट्रक्ट करना बताया जाता है, सिखाया जाता है कि कैसे मैट्रिक्स बनाना होगा और क्या दिया जाता है। उस मैट्रिक्स की बात, जब भी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि मैट्रिसेस होती क्या है। मैट्रिसेस की मीन्स होता है, सीधा सा फंडा है कि द अरेंजमेंट ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर बॉक्स बाय रो एंड कॉलम इज नोन एज द मैट्रिसेस की बात होगी। जब मैट्रिसेस की बात होगी तो एक क्वेरी उठता है, व्हाट इज रो। रो मीन्स होगा द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज द रो एंड द वर्टिकल लाइन इज नोन एज द कॉलम होगा। रो इज रिप्रेजेंटेड बाय n एंड कॉलम इज रिप्रेजेंटेड बाय n, और n क्रॉस n मीन्स पहले रो लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे बात समझिए एग्जाम्पल में कि यहाँ पे पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तो 3 हो गया। फिर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, 3 क्लास 4। 3 क्लास 4 का मतलब होगा 3 रो होगा, 4 कॉलम होगा, और 3 क्रॉस 4 इक्वल टू 12 आएगा। दैट मीन्स 12 एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देन आता है, जैसे मैट्रिक्स की बात खत्म होती है कि मैट्रिक्स होता क्या है एंड मैट्रिक्स कितने कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। देन दूसरा क्वेरी उठता है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हो सकता है किसी के दिमाग में ऐसा हो कि केवल सर एक ही रो हो, एक ही कॉलम हो सकता है कोई कहते नहीं सर रो और कॉलम दोनों बराबर हो, तो बहुत सी कंडीशन आती है। ऐसे कंडीशन को देखते हुए टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात किया गया। सबसे पहला क्वेरी हुआ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात किया गया, टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात किया गया, तो सबसे पहला टाइप की बात करते हैं बेटा, तो आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मीन्स, व्हाट इज रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स मीन्स ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो, ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो is known as the row matrix. A matrix having single row is called row matrix. row matrix जैसे एग्जांपल लिया जाए, ए कोई मैट्रिक्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे चलता जा रहा हो, सपोज करिए पी तक है। मीन्स एक रो है, और कॉलम की बात करेंगे एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ऐसे पी कॉलम, तो ये मैट्रिक्स होगा 1 क्रॉस पी का। मीन्स सबसे पहले रो लिखा जाएगा, देन कॉलम लिखा जाएगा। मीन्स इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा 1 क्रॉस पी। दूसरा एग्जांपल समझिए कि सपोज करिए एक्स है, कोई एक्स लिया जाए, एक्स इक्वल टू मैं कह दूं कि नहीं भाई 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 एम पूछा जाए, ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि एक सिंगल रो की बात कर रहे हैं, तो रो मैट्रिक्स होगा। कॉलम की बात होगी तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, एन कॉलम, तो यह आ जाएगा 1 क्रॉस एम, दैट इज नोन एज द रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, देन इसके एग्जांपल की बात करते हैं। दूसरी चीज आती है, सेकंड टाइप की बात करेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे। कॉलम मैट्रिक्स मींस ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल column is known as या is called column matrix। एग्जाम्पल सपोज करिए a इक्वल टू समथिंग है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट n। सिंगल कॉलम इज नोन एज द कॉलम मैट्रिक्स। बट पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, n रो, मीन्स कॉलम रो की बात होगी, n रो है और एक कॉलम है, n क्रॉस 1 की बात होगी, दैट इज द कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल अगर देखा जाए, सपोज करिए b है, कोई 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट p है। हाउ मेनी रो, तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ऐसे p रो, तो p क्रॉस 1 सिंगल रो है, सिंगल कॉलम है, और p रो है, तो p क्रॉस 1 इज द कॉलम मैट्रिक्स होगा। ये दूसरा टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। थर्ड आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स ए मैट्रिक्स
ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम या से कहा दिया जाए जिस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, ऐसे को बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल कि सपोज करिए A इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 है 2 है 3 है 4, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम। एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा। ये 2 क्रॉस 2 मीन्स 4 आएगा, दैट मीन्स 4 एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट मैट्रिक्स, 4 एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट मैट्रिक्स। सपोज करिए कि ऐसे कोई मैट्रिक्स हो सकता है बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा भी चल रहा हो कि सर बार बार नंबर रहे। सपोज करिए ऐसे कर लीजिए 1 है 2 है 3 आई है, 0 है 5 है 4 है 3 है 9 है 6 है। इट इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम एंड 3 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। दैट मीन्स टोटल 9 एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट मैट्रिक्स होगा। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। देन आता है देन 4 आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आता है, स्केलर मैट्रिक्स आता है, यूनिटी मैट्रिक्स आता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। चौथा अगर हम बात करें डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि ए मैट्रिक्स, सबसे पहले कंडीशन बेटा होती है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स में कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सबसे बड़ी चीज है स्क्वायर मैट्रिक्स हो। पहली कंडीशन अगर दूसरे फॉर्म की बात में किया जाए कि पहली कंडीशन होना चाहिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए मीन्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो होना चाहिए। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हो वो जीरो होना चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट इज समथिंग का मतलब डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो एक्सेप्ट जीरो हो। जैसे देखा जाए इसको भी समराइज करना कैसे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज द डायगोनल मैट्रिक्स इफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट इज समथिंग। फॉर एग्जांपल एक देखा जाए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात किया जाए 1 है 0 है 0 है 0 है 2 है 0 है 0 है 0 है 0 0 3। देखिए इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। लीडिंग डायगोनल की बात करते हैं, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट ये डायगोनल लिया गया, इस डायगोनल ये डायगोनल एलिमेंट हो गया, इसे नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गया। मैंने कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, ऐसे को बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए। सपोज करिए दिमाग में ऐसे हो कि 0 है 2 है -4 है 0 है 0 है -6 है 0 है 0 है। ये डायगोनल एलिमेंट होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट इज समथिंग, ऐसे को बोला जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। ये फोर्थ हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। देन आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, दैट इज फिफ्थ की बात किया जाए या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो फिफ्थ की बात किया जाएगा। तो लाइक स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर का मतलब ही होता है सेम। स्केलर मींस स्केलर मैट्रिक्स मतलब पहली कंडीशन फॉलो करेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दूसरा कंडीशन फॉलो करेगा नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो, तीसरा कंडीशन होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल हो या सेम हो। डायगोनल एलिमेंट should be equal and diagonal element should be same. For example, suppose करिए A है, मैं कह दूं 2 है 0 है 2, it is the scalar matrix. Suppose करिए B है, suppose K है 0 0 0 K 0 and 0 0 K, it is also known as the scalar matrix. Diagonal element same है और non diagonal element should be 0 है और it is also known as the square matrix. कंडीशन होनी चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज द स्केलर मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट इज सेम।
ऐसे को बोला जाएगा स्केलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। देन स्केलर मैट्रिक्स की जस्ट बाद आता है यूनिटी मैट्रिक्स। जो 6 की बात करें तो यूनिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे। यूनिटी मैट्रिक्स या उसी को बोला जाता है दूसरी लैंग्वेज में, कहीं कहीं कहा जाता है उसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिटी मैट्रिक्स या इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स पहली कंडीशन जो मैंने कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। पहली कंडीशन होनी चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो भी 0 हो, और जो डायगोनल एलिमेंट हो वो डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसे को बोला जाएगा यूनिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल कि A = 1 0 0 1 ऐसे हो, B = 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी मैट्रिक्स की बात करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। देख लीजिए ये सब ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई एक मैट्रिक्स है 1 या 0 0 1 1 0 0 एंड 0 यहाँ पे 1 0 0, ऐसे भी डायगोनल ले लेंगे तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। इट इज आल्सो नोन एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड यूनिटी मैट्रिक्स होगा। मीन्स मैंने बताया, बेसिक चीज बताया कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स में रो क्या होता है, मैट्रिक्स में कॉलम क्या होता है, मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं क्या होता है। देन इसके बाद व्हाट कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कैसे मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कैसे मैट्रिक्स बनाई जाती है, इतनी बात मैंने किया। इसके बाद आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले मैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स की बात किया, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स की बात किया, थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स की बात किया, डायगोनल मैट्रिक्स की बात किया, स्केलर मैट्रिक्स की बात किया, देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात किया। ये इसके बेसिक इसके टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले जब यहाँ तक की बात क्लियर हो जाती है तब एक बात आती है दैट इज नोन एज द इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। या मैं टाइप ऑफ की बात कर दूं या इस पर कोई ऐसे अलग टाइप की बात करेंगे। इक्वलिटी आपने 2 मैट्रिसेस की बात करेंगे। इक्वलिटी की बात जब भी होगी तो 2 ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए, एक मैट्रिक्स की बात नहीं होगी। जब इक्वलिटी की बात करेंगे या किसी से कंपेयर करेंगे तो एक से नहीं कंपेयर किया जाएगा, 2 ऑब्जेक्ट की बात किया जाएगा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब अगर लेट सपोज किया A कोई मैट्रिक्स है Aij जो m क्रॉस n है एंड B कोई मैट्रिक्स है Bij, I and j is nothing, I is the row, j is the column, it is represented I and j, Bij is row में P and P क्रॉस Q। A = B होगा if एक लाइन में कहा दिया जाए ऑर्डर सेम हो। अगर एक लाइन की बात करेंगे तो मैं कहा दूंगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर का सेंस क्या होगा कि नंबर ऑफ रो इन दिस मैट्रिक्स मींस m = p एंड n = q, खत्म, यही होगा। अगर मैं नंबर ऑफ रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स, अगर ये है ऐसे कंडीशन को बोला जाता है इक्वलिटी या फिर 2 मैट्रिक्सेस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल सीधा फॉर एग्जांपल की बात किया जाए, बहुत आसान सा है। जैसे सपोज क्या लेट A = है ऐसे इफ x y z p इक्वल टू है -1 2 4 and 5 सपोज करिए इफ दिस इक्वल टू दिस और कहा जाए फाइंड x y z एंड p, तो सीधा सबसे पहले देखेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है। देखिए 2 क्रॉस 2 का ये, 2 क्रॉस 2 का ये, सीधे कंपेयर करेंगे एज इक्विवेलेंट कि x = -1, y = 2, z = 4 एंड p = 5। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z p ऐसे मिल जा रहा है। ये सिंपल एग्जांपल है, जब इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स की बात करते हैं तब की बात बताया जा रहा है। लेकिन सपोज करिए कि ऐसे मिल जाए इलेट if x plus y 2 and -1 and 2x plus y this equal to है
4 है, 4 है, 2 है, -1 है एंड 6। सपोज करिए ऐसे कि if this equal to this, then find the value of xy, then find the value of xy। सीधा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ये है, मींस x plus y equal to 4, एक इक्वेशन ये मिला बेटा। दूसरा है 2x plus y equal to 6, दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, x और y की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। जैसे 10th 11th में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में पढ़ा, उसी फॉर्म में सॉल्व करिए। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x minus 2x minus x, यहाँ 4 minus 6 minus 2, दैट इज x equal to 2 मिला। x equal to 2 मिल गया, उठा के किसी इक्वेशन में रख दीजिए, 2 plus y equal to 4, तो y equal to 4 minus 2, दैट इज y equal to 2 मिल गया। x और y वैल्यू मिल गए, उठा के रख दीजिए। ये इस तरीके से इक्वलिटी या टू मैट्रिसेस की बात की जाती है। कहीं कहीं प्रॉब्लम आसानी से मिलता है, कहीं कहीं प्रॉब्लम इसका थोड़ा सा टफ भी मिल सकता है इक्वल, बट ये है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात जब भी किया जाएगा तो ये कंडीशन होगी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं सेम है, सपोज कि मैं क्या हूँ a इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एक मैट्रिक्स है, और b इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, सपोज करिए 4 है, 5 है, -1 है, 6 है, 7 है, 8 है। मैं क्या हूँ इक्वल की बात किया जाए या इक्वल की बात किया जाए, मैं ऐसे कह दूँ यहाँ 4 की जगह मैं x की बात कर दूँ और कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी नॉट सेम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नॉट सेम मींस ये 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर यहाँ सेम नहीं है, इसलिए यहाँ कोई चीज कंपेयर नहीं किया जा सकता, ना इक्वलिटी की बात कर सकते हैं। और जब थोड़ा सा मैथमेटिक्स आगे बढ़ाते हैं, मैट्रिक्स में ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो ऑपरेशन में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन भी कह सकते हैं होता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब उसका ऑर्डर सेम हो, अदरवाइज एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ तक हो गया। मैंने कहा टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, बेसिकली एकदम इंट्रोड्यूस में टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये है। दूसरा अगर मैट्रिसेस में ही बात करते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि ऑपरेशन की बात किया जाए, सीधा सा कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात किया जाए। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मीन्स, ऑपरेशन मीन्स सबसे पहला पॉइंट होगा एडिशन, एडिशन की बात करेंगे, एडिशन की बात करेंगे। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन, ये एडिशन तभी पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा इफ ऑर्डर इज सेम। सीधा सा कॉन्सेप्ट किताब की भाषा से हट के है। एडिशन पॉसिबल तब होगा जब ऑर्डर सेम होगा, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल सपोज करिए a इक्वल टू मैं दे दूं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है a, और b इक्वल टू दे दूं -1 है, 4 है, 5 है, 6 है। मैं कहूँ फाइंड a प्लस b, तो सबसे पहले ये देखना है कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो a प्लस बी इज पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर इज सेम, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का a है, 2 क्रॉस 2 का a है। सीधा सा a प्लस बी इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, या एक बार देख लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, a मैट्रिक्स a हो गया, प्लस ये -1 है, 4 है, 5 है, 6, a मैट्रिक्स b हो गया। ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, लाइक 1 है, ये ऐड करेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस, माइनस तो -1 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 4 हो जाएगा, एंड 3 प्लस 5 होगा, एंड 4 प्लस 6 होगा। तो ऐसे 1 - 1 ये आ जाएगा बेटा 0, ये 6, ये 8 और ये 10। ये एक राशि मैट्रिक्स का एडिशन है। एक सेम जैसे एडिशन पॉसिबल है, सेम ऐसे सब्ट्रैक्शन की भी बात करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब ऑर्डर सेम हो, जब ऑर्डर सेम होगा, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन भी नहीं पॉसिबल होगा। जैसे सपोज करिए कि मैं कहूँ a इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेट a इक्वल टू है, एंड b इक्वल टू सपोज करिए -1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8 है। मैं कहा दूं कि फाइंड a प्लस बी, फाइंड a प्लस बी। कुछ लोग हो सकता है तुरंत जोड़ दें, ऐड कर दें और आंसर ला दें। पहले देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का। मैंने कहा एडिशन तब पॉसिबल होगा जब ऑर्डर सेम है,
यहाँ आर्डर ये 2x2 का, यहाँ 2x3 का है, तो आर्डर डिफरेंट है, इसके मतलब एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। और अगर आर्डर डिफरेंट है तो एडिशन भी नहीं पॉसिबल होगा और सब्ट्रैक्शन भी नहीं पॉसिबल। लिख देंगे साफ साफ, इट इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है कोई पूछ ले कि क्यों नहीं पॉसिबल है, सीधा सा कॉन्सेप्ट ये कि आर्डर इसका सेम नहीं है। ये इस तरीके से इसमें ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, एडिशन की बात करते हैं। देन सिमिलरली ऐसे सब्ट्रैक्शन की बात किया जाएगा, सब्ट्रैक्शन की बात किया जाएगा। दूसरा ऑपरेशन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ये भी सेम है कि ये पॉसिबल होगा इफ ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर इज सेम मीन्स ऑर्डर सेम का मतलब जैसे 1 इक्वल टू a इक्वल टू है 1 2 3 है 4 5 6 है, एक मैट्रिक्स है। एक बी मैट्रिक्स है, सपोज किया 6 है 7 है -1 है 4 है 5 है 8। इसको सब्ट्रैक्शन की बात किया जाए, अगर सपोज किया जाए लेट a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, फाइंड a माइनस b, फाइंड a माइनस b। a माइनस b पॉसिबल होगा क्योंकि ऑर्डर सेम है। तुरंत a माइनस b इक्वल टू सीधा सा लिखेंगे बेटा 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, ये माइनस 6 है 7 है -1 है एंड 4 है 5 है 8 है। सब्ट्रैक्शन जैसे करते थे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1 - 6 -5 आ जाएगा, 2 - 7 -5 आ जाएगा, 3 - 1 तो ये प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 - 4 0, 5 - 5 0, 6 - 8 -2, ये आ जाएगा बेटा सिंपल सा a माइनस b मैट्रिक्स आ जाएगा। इस तरीके से ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो एडिशन है एंड सब्ट्रैक्शन।